Hi guys, let's start with today's class. So we will be discussing about different health insurance products. I hope everyone has completed the orientation session which was held last week. So all the students who have joined recently, I hope guys you have gone through that orientation lecture. उस orientation lecture में basically I have tried to explain the next steps at how we will be proceeding further, and I just gave some glimpses of the entire subject. So I hope that particular orientation is clear to all those who joined after that orientation class was held. So basically we are starting with our content discussion from now onwards. So we will be having regular classes basically for subject SP1, because you know that we are recording it because the videos are getting recorded for the fresh. So basically I will be taking classes apart from Saturday and Sunday as well. So the timings either will be early morning or will be somewhere around 9:30 PM 10 PM, so that everyone can find out time to attend it live. So either I will keep the timings around say 8 AM to 9 AM, or I will keep the timings from around 8:30 PM to 9:30 PM. तो सैटरडे संडे के अलावा जो भी क्लास होगी उसकी हम टाइमिंग्स अर्ली मॉर्निंग या अराउंड लेट नाइट रखेंगे, सो दैट यू कैन मैनेज योर टाइम वेल. Because I received these feedback only from some of the students, and in case you want to keep it in weekday as well, so you can keep as per these timings. So I thought, because basically what I am planning is that we will be wrapping the content ASAP as soon as we can, so that we can focus more on questions discussion. तो क्लास में हम लोग कंटेंट डिस्कशन प्लस क्वेश्चन डिस्कशन दोनों करेंगे, एंड मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंगली बाय अगस्त वी विल ट्राई टू रैप अप द कंटेंट. And if you are giving in September, to August to September exclusive, we will be just focusing on past papers. And if you are giving it from II, तो हमारे पास और एक्स्ट्रा टाइम है II के पास पेपर्स करने का. तो अभी जो क्लासेस कंटिन्यूसली हम लोग लेंगे उसमें हम आपके कंटेंट डिस्कशन प्लस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर प्लस योर एक्स सीरीज क्वेश्चंस, तो तीनों चीजें आपके कंटेंट क्लासेस में कवर हो रही. एंड इफ फॉर एनी रीजन यू आर नॉट एबल टू मेक इट लाइव, तो कोई भी इशू नहीं है, बिकॉज द वीडियो विल गेट अपलोडेड ऑन कंटेंट ब्राउजर एज सून as we can. So video definitely takes time, but for this particular subject we are trying कि जैसे ही आज शुक्र क्लास होती है तो within next 2 days the video gets uploaded on the browser, so that you don't miss out on anything. So आपके पास sufficient videos होंगी watch करने के लिए. Secondly, I will be sharing weekly targets, so you just have to make sure that you are following the targets. And target following के लिए आपको एक चीज complete करनी है, that is watching your reading your co-reading before the lecture class. So just try, if possible, at least you are going through that particular chapter of the co-reading, because if you are reading before the lecture that helps in building your better base. थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाती है. जो आपका अगर इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका वर्क एक्स है तो वो आपका थोड़ा रिवाइज हो जाता है. दैट्स व्हाई आई रिकमेंड, इट्स नॉट अ कंपल्शन, बट येस इट इज जस्ट रिकमेंडेड दैट इफ पॉसिबल ट्राई टू रीड द चैप्टर्स बिफोर द क्लास. सो अभी से लेकर पूरा नेक्स्ट वीक तक आपके पास हर सैटरडे हर संडे ईओडी तक वी विल बी शेयरिंग द टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट वीक, so that you can accordingly manage your commitments. Now guys, we will always make sure that we have to make it a live interactive class. तो जो भी इस टाइम पे ब्राउजर से क्लास ले रहे हैं, कंटेंट ब्राउजर से, you have an option of chat there. तो मैं कभी भी जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको कुछ भी आंसर मुझे सबमिट करना है फॉर फीडबैक पर्पस, फील फ्री टू टाइप योर आंसर इन द चैट सेक्शन. सेकेंड ऑप्शन इज, आपको पता है कि चैट में अगर आप इंडिया से अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको टाइप करने की नीड नहीं है. यू कैन simply click the photo of your attempted question and can send it to me over Skype. So guys, any mode is acceptable, either on Skype or on the direct browser chat. आप उसको टाइप करके भेजना है, टाइप करके भेजो. अगर आप आई से अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप आई से अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्लिक द फोटो ऑफ द आंसर एंड देन सेंड इट टू मी ओवर Skype. I will read out your answer in the entire class and then we will discuss ki what needs to be improved. So guys, do participate in discussion class. Discussion class का मतलब ही यही है that we are making effective use of the resources and trying to improve on our questions.
बेसिकली अगर एक स्टूडेंट का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहता, उसका रिजल्ट पॉजिटिव इसलिए नहीं रहता बिकॉज स्टूडेंट डज नॉट हैव नॉलेज। नॉलेज आप लोगों को होता है, कंटेंट सबको पढ़ना आता है, कोडिंग आपके पास है। व्हाट मैटर्स इज दैट हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग योर आंसर्स, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर्स। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन सब्जेक्ट लाइक SP1 is crisp and clear presentation of the answers. कि what is required by the examiner, you should know that. I don't want extra details from your side. मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा आप लोगों की तरफ से, जितना चाहिए वो एप्ट होना चाहिए। तो हमें वो सीखना है कि हमें एप्ट कहाँ पर आना है, एप्ट का मतलब क्या है एग्जामिनर के लिए, तो आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग करनी है। So we are starting with our products discussion. So obviously next 3 to 4 classes will be based on products discussion only. We will be discussing different health insurance products in detail. Now let's start with our content class. अब सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछूं बेसिकली कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू बिजनेस स्ट्रीम? Guys, what do we mean by this new business strain? अगर मैं रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज की भी बात करूं तो न्यू बिजनेस स्ट्रेन का क्या मतलब होता है कि इनिशियल ईयर्स में बेसिकली जब हमने पॉलिसी एकदम स्टार्ट करी है तो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इनिशियल ईयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हिच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस? वी हैव मार्केटिंग एक्सपेंस, वी हैव सेल्स एक्सपेंस, वी हैव अंडरराइटिंग एक्सपेंस, वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, वी हैव एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग of computer system. So there are a lot of initial expenses involved at the start of the contract. So we have initial expenses at the start of a contract. Now initial expenses में कौन-कौन से expense? We have marketing expense, administration expense, underwriting expense, managing computer systems expenses, sales expenses. So बहुत सारे expenses involved है डेफिनेटली जिसमें आपका कॉस्ट जाती है। इसके अलावा what else is there? अब इनिशियल ईयर्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग में ठीक है कि प्रीमियम इनकम लेस आउटगो इन द फर्स्ट ईयर विल बी लो, और हो सकता है नेगेटिव भी हो कि प्रीमियम इनकम माइनस आउटगो इज नेगेटिव बिकॉज आउटगोज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्टार्टिंग के पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव एसेट शेयर होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इशूइंग ऑफ द पॉलिसी। Now because of this particular reason, insurance authorities always want that reserves should be set aside to ensure that company is able to meet its future obligations to the policy holders. So obviously your capital of your insurance company gets tied up in these reserves. तो जितना हमारा एसेट शेयर नेगेटिव आएगा स्टार्ट ऑफ द पॉलिसी में और जितनी हम एक्सपेक्ट करेंगे पे आउट्स इन नियर फ्यूचर, उतना मुझे रिजर्विंग ज्यादा करनी पड़ेगी। जितनी आपकी रिजर्विंग ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली उतने आपके फंड्स टाइड अप हो जाएंगे और उतना आपका न्यू बिजनेस स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा। तो अनदर रीजन फॉर न्यू बिजनेस स्ट्रेन इज फंड्स टाइड अप इन रिजर्व्स। नाउ एक तो ये रिजर्विंग हम कर रहे हैं, इसके अलावा एज अ कंपनी वी आल्सो हैव टू मेक श्योर दैट वी आर मेंटेनिंग सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एसेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ लायबिलिटीज। ये कह रहे हैं एक तो आपने एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए, स्टार्टिंग ईयर्स में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या है कि आपको रिजर्विंग करनी है टू मीट योर कैश फ्लोज। तीसरा क्या है जो आपके लायबिलिटीज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये मेक श्योर करना है कि यस यू आर कीपिंग सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एसेट्स, जिसको हम सॉल्वेंसी कैपिटल कहते हैं। सो एक तो कैपिटल इसमें आपकी टाइड अप है और एक्स्ट्रा कैपिटल कहाँ पे टाइड अप हो जाएगी आपके सॉल्वेंसी कैपिटल में। So the combination of your initial cash outflow, the need to hold reserves, need to establish the solvency capital, इससे क्या हो रहा है? Means money has to be there initially in order to write the business. You will require money. और इतना पैसा नहीं आ रहा होता जितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इनिशियल ईयर्स में। इसको कहते हैं न्यू
business strain, or we can say is initial capital strain. कि जब भी आप कोई पॉलिसी लॉन्च कर रहे हो, आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए उसका रिजर्विंग के लिए, आपके पास सफिशिएंट मिनिमम सॉल्वेंसी कैपिटल होना चाहिए फॉर इट्स लायबिलिटीज, आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए फॉर मीटिंग इट्स एक्सपेंसेस, व्हिच गिव्स राइज टू दिस कैपिटल स्ट्रेन. सो तीनों का कॉम्बो गिव्स राइज टू इनिशियल कैपिटल स्ट्रेन. So guys, this is important because especially in exam, इंडिया के एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर चीज़ पर टारगेट करते हैं. कोई भी पॉलिसी पिक करेंगे और आपसे कुछ भी न्यू बिजनेस ट्रेन से रिलेटेड पूछ सकते हैं. So you should be aware of the concept of new business train. Now let's do one question corresponding to this. So question says, a health and care insurance company, a health and care insurance company writes first part long-term care insurance policies secured by a single premium paid at the start of the contract, and second is critical illness policies secured by level premiums throughout the term of the policy. तो एक है हमारी लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज गेटिंग सिक्योर्ड बाय अ सिंगल प्रीमियम पेड एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दूसरी है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी सिक्योर्ड बाय लेवल प्रीमियम्स थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी. सो क्वेश्चन इज आस्किंग यू बेसिकली फॉर 4 marks, describe how new business strain is likely to arise in each case. डिस्क्राइब का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स है, एक पार्ट 2 मार्क्स, इजी क्वेश्चन. आपको बस ये बताना है कि अगर एक लॉन्ग टर्म केयर पॉलिसी है विच इज सिक्योर्ड बाय सिंगल प्रीमियम तो न्यू बिजनेस ट्रेन कैसे आएगा, एंड क्रिटिकल इलनेस और इंश्योरेंस पॉलिसी में न्यू बिजनेस ट्रेन कैसे आएगा. सो स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन.
Guys, make use of chat section to put your answers. This is very easy question. A health and care insurance company writes long-term care insurance policies secured by a single premium paid at the start of the contract. क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी सिक्योर्ड बाय लेवल प्रीमियम. सबसे पहले सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है जिसमें आपको रेगुलर प्रीमियम्स आ रहे हैं थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी, बट फिर भी न्यू बिजनेस स्ट्रेन क्यों अराइज होगा? ये अभी हमने डिस्कस किया. न्यू बिजनेस स्ट्रेन क्यों अराइज होगा? हो सकता है इनिशियल ईयर्स में आपका एसेट शेयर नेगेटिव है. क्यों नेगेटिव है? बिकॉज इनिशियल ईयर में एक्सपेंसेस ज्यादा है. कौन से एक्सपेंसेस ज्यादा है? कमीशन, सेल्स, मार्केटिंग, अंडरराइटिंग, पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स. रिजर्विंग करनी पड़ जाएगी. क्यों करनी है रिजर्विंग? टू रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. आपको सॉल्वेंसी कैपिटल होल्ड करनी है. क्यों सॉल्वेंसी कैपिटल होल्ड करनी है? टू प्रोटेक्ट, basically to keep certain minimum assets corresponding to your liabilities. So all the things that we've just discussed will come under your second part. So we have new business strain because of asset share being negative. So regular premiums आ रहे हैं, premium inflow इतना नहीं होगा जितना outflow जा रहा है. So premium income is less than outflow. Why? High expenses. Make sure you are giving examples of expenses. Apart from expenses, you know we need to maintain reserves to reduce default probability. You need to maintain solvency capital to protect liabilities. So all this can lead to new business strain in regular policies. First part क्या कह रहे हैं? देखो, long term care insurance policies secured by a single premium paid at the start of the contract. So first part में तो रेगुलर पॉलिसी भी नहीं है, उसमें तो बेसिकली इट्स अ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी. फिर भी क्यों है न्यू बिजनेस स्ट्रेन? बिकॉज ऑल्दो आपका नेट कैश इनफ्लो बहुत बड़ा है, यू हैव अ लार्ज पॉजिटिव नेट कैश इनफ्लो बिकॉज ऑफ द सिंगल प्रीमियम, बट स्टिल इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट न्यू बिजनेस स्ट्रेन कैन अराइज बिकॉज जो हम एजम्पशंस यूज कर रहे हैं रिजर्विंग के लिए, सॉल्वेंसी कैपिटल के लिए, हम लोग इतना ज्यादा प्रूडेंट होके यूज कर रहे हैं कि इट इज एक्चुअली लीडिंग टू कीपिंग अ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंसी कैपिटल कंपेयर्ड टू व्हाट वी हैव रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल प्रीमियम. सो यहाँ पर एक ही सबसे बड़ा पॉइंट आएगा दैट वी आर गोइंग प्रूडेंट इन रिजर्विंग which is leading to high value of solvency capital. So this was just to explain you ki how new business strain works. This is not any part of any particular product. It will come under all products. This is just a general characteristic. So I just wanted to explain new business strain because हम लोग जब आगे जाते हैं तो new business strain भूल जाते हैं. Most of the times when I ask this question, single premium के केस में student answer ही नहीं कर पाता. So I just wanted to make you guys clear with this before we actually proceed with products discussion. So just note it down and then we are moving further. Now let's start with our first product. हमने लास्ट क्लास में भी स्टार्ट किया था बेसिकली. Now we will be discussing all the details of this particular product, that is income protection insurance. Now income protection insurance को और क्या बोलते हैं हम लोग? We say it as permanent health insurance. PHI or IP can be used interchangeably. Now
सेशन किस तरीके से वर्क करता है? बेसिकली जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इट प्रोवाइड्स द इंश्योर्ड विद एन इंश्योरेंस कि अगर आप इनकैपेसिटी हो जाती है, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ एनी इलनेस, यू आर नॉट एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ इंजरी, तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एक इंश्योरेंस मिल जाएगी कि इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क यू विल गेट कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो कंपनसेशन जो आपको मिलती है वो क्यों मिलती है? बिकॉज आपने इसके बदले में प्रीमियम पे किया होता है, और आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? इट्स बेसिकली टेम्परेरी एनिटी, इट्स नॉट अ परपेचुइटी, इट्स अ टेम्परेरी एनिटी। और ये एनिटी आपको कब तक मिलती रहेगी? जब तक पॉलिसी होल्डर रिकवर नहीं होता, या फिर उसकी डेथ नहीं होती, या फिर पॉलिसी एक्सपायर नहीं होती। मान लो पॉलिसी थी 10 इयर्स की, अब 10 ईयर तक डेथ नहीं हुई, 10 ईयर तक वो रिकवर नहीं हुआ, तो आपका यहाँ पे टेम्परेरी एनिटी सीज हो जाएगी। अगर आपकी डेथ 5 ईयर पे ही हो गई और आपकी पॉलिसी 10 इयर्स की थी, वो यहाँ पर सीज हो जाएगी। आप 4th ईयर में रिकवर हो गए, ऑल्दो पॉलिसी वाज फॉर 10 इयर्स, यहाँ पर बेनिफिट सीज हो जाएंगे। सो द पॉइंट इज कि एनिटी आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक इधर द पॉलिसी होल्डर इज नॉट रिकवर्ड, या फिर डेथ नहीं होती, या फिर पॉलिसी एक्सपायर नहीं होती। And generally to make premiums more attractive and to meet the policy holders needs, generally एक deferred period होता है कि एक claimant को, जो मतलब जिसको हम लोग ये benefits provide कर रहे हैं, उसको कुछ तक sick रहना पड़ेगा, तभी उसको ये benefits देंगे। जैसे हम generally 13 months का period लेते हैं कि अच्छा अगर आप 13 months तक भी sick रहते हो तो benefit will start coming, तो insurance company include करती है ये deferral period in their contracts। So why do we opt as a person, why will I opt for this income protection product? कि मुझे ये एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या मुझे इलनेस हो जाती है, तो मेरी इनकम का कुछ पार्ट बहुत इजीली रिप्लेस हो जाएगा। So it's like the benefits are in the form of regular income only, and the point is to bring back the situation, the financial situation of the policyholder to the same level as it was earlier before any illness or before any accident. So it is quite possible कि आप benefits लेते हो इसके अंदर और आप recover हो जाते हो and you are able to work again. सो आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिले, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट, आपने पहले कुछ भी क्लेम नहीं लिया था और एकदम से कुछ इशू आ गया, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोथ पॉलिसीज आर अवेलेबल। सो इसकी इंडिविजुअल इनकम प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है, ग्रुप इनकम प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। तो ग्रुप इनकम प्रोटेक्शन इज बेसिकली टेकन बाय एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू देयर एम्प्लॉयज। सो इनकम कवर का एक बेसिक आपको क्लियर है इनकम प्रोटेक्शन का कि एग्जैक्टली क्या होता है इनकम प्रोटेक्शन। नाउ यू शुड मेक श्योर कि आपको डिफरेंट डेफिनेशंस आनी चाहिए। अब SP1 में, SP2 में बेसिकली हम लोग क्या सीखते थे कि अच्छा ये लाइफ इंश्योरेंस का ये प्रोडक्ट है, एंडोमेंट में ये होता है, ये रिस्क है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसमें आप कैसे सीख रहे हो कि ये इनकम प्रोटेक्शन अगर प्रोडक्ट है तो कब हम बेनिफिट्स देंगे, किन सिचुएशंस में हम बेनिफिट्स देंगे, किन सिचुएशंस में हम प्रीमियम्स को रिड्यूस करेंगे। सो काफी सब कुछ ना स्पेसिफिक हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली। अब इनकम प्रोटेक्शन में ही आपको मैं डिफरेंट डेफिनेशन सिखाऊंगी, डिफरेंट कंडीशंस बताऊंगी। अब एक हमारी डेफिनेशन होती है बेसिकली रिप्लेसमेंट रेशियो। So the first thing that you have to understand when we are discussing this product, replacement ratio का क्या मतलब है? So if you have worked in health, तो you must be aware of this. In case you are not aware of this, तो replacement ratio का मतलब होता है कि आपकी क्लेम के बाद वाली इनकम डिवाइडेड बाय क्लेम से पहले वाली इनकम। So ratio of post claim income to pre claim income, ठीक है। तो बेसिकली ये रेशो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपकी इनकम कितनी कम हुई है आफ्टर इनकैपेसिटी। सो बेसिकली इट्स अ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ योर क्लेम एक्सपीरियंस। जितनी ज्यादा रिप्लेसमेंट रेशियो बड़ी होगी, देखो एक मैं बोलूँ आपको पोस्ट क्लेम इनकम हो रही है 50,000, प्री क्लेम इनकम आ रही है 80,000, पोस्ट क्लेम इनकम आ रही है 70,000,
50,000, तो कोई इंसेंटिव ही नहीं बचेगा वर्क करने का। तो जितनी रिप्लेसमेंट रेशियो बड़ी होती जाएगी, द लोअर बिकम्स द इंसेंटिव टू रिटर्न टू वर्क, विच विल, जितना रिटर्न टू वर्क का इंसेंटिव कम होगा, ऑटोमेटिकली मॉर्बिडिटी एक्सपीरियंस और ज्यादा वर्स होता जाएगा। तो वी कैन से हायर द रिप्लेसमेंट रेशियो, the lower the incentive to return to work. And जितना lower the incentive to return to work, उतना morbidity experience will worsen. तो अभी बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर आपकी रिप्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छी चल रही है तो कोई इंसेंटिव ही नहीं बचता। यार हम कहते हैं उतना ही तो आ रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है, वाई टू वर्क, बिकॉज आपको उतनी ही इनकम मिल रही है, आपकी इंश्योरेंस ही आपने इतनी करवा रखी थी कि आपको लेवल ऑफ इनकम इज नॉट हैम्पर्ड। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो आप, लिंक्ड क्लेम पीरियड। अब लिंक्ड क्लेम पीरियड, और इसको हम एक और नाम बोलते हैं ऑफ बेनिफिट पीरियड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू रिमेंबर दिस कीवर्ड्स बिकॉज वी विल बी यूजिंग दीज कीवर्ड्स इन आवर आंसर्स। दैट इज बेसिकली कंडीशन दैट अलाउस अ रिटर्न टू वर्क इफ योर बेनिफिट्स गेट रिड्यूस्ड। सो लिंक्ड क्लेम पीरियड का या ऑफ बेनिफिट पीरियड का मतलब ही यही है कि पॉलिसी कंडीशंस में हम लोग ये मेंशन कर देते हैं कि यू कैन रिटर्न टू पार्ट टाइम वर्क विद रिड्यूस्ड पॉलिसी बेनिफिट्स। सो रिटर्न टू पार्ट टाइम वर्क विद reduced policy benefits. Now next thing that we have to understand in this income protection is the condition of over insurance. Now generally जो हम benefits पे करते हैं under this IP policy, उसमें एक upper limit हम लोग define कर देते हैं, और upper limit जो हम define करते हैं that is basically defined in terms of maximum replacement ratio. कि अच्छा आपको ये make sure करना है कि आपकी replacement ratio इस particular level से exceed नहीं करनी चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा उनको post claim income मत दे देना कि replacement ratio 75% को भी cross कर जाए। सो जनरली एक जो पैरामीटर से हम लोग एग्जामिन करते हैं कि ओवर इंश्योरेंस का मतलब क्या है, हायर देन एप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट रेशियो। तो आप ओवर इंश्योरेंस किस फॉर्म में दे सकते हो कि आप कुछ सैलरी को कोई इन्फ्लेशन लिंक नहीं कर रहे, आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा दे रहे हो, या फिर आपने कोई टैक्स बेनिफिट्स दे दिए ओवर पोस्ट क्लेम इनकम, या फिर आपने और क्यों हो सकती है रिप्लेसमेंट रेशियो आए कि मान लो मल्टीपल पॉलिसीज चल रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से हर जगह से इनकम आ रही है। So there has to be a limit on the maximum benefits that can be provided, and we have to make sure that when we are designing the product, we have to make sure that we are subjecting the benefits to this upper limit. अब अपर लिमिट में आप बोल सकते हो कि मे बी आप कैसे लग सकते हो इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लिमिट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम रिप्लेसमेंट रेशियो। ये पूछा जा सकता है कि लिमिट कैसे लगा सकते हैं ऑन योर बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम रिप्लेसमेंट। अब अगर मैं 75% बोल रही हूँ रिप्लेसमेंट रेशियो, दैट मीन्स मेरी प्री इनकैपेसिटी अर्निंग्स का जो पोस्ट इनकैपेसिटी अर्निंग्स शुड नॉट बी मोर देन 75% ऑफ प्री इनकैपेसिटी अर्निंग्स। सो मे बी लिमिट ऑफ 75% ऑफ प्री इनकैपेसिटी अर्निंग्स, ये एक लिमिट लगा सकते हो। आप ओवरऑल कोई बेनिफिट्स पे लिमिट लगा सकते हो, या फिर जिनकी सैलरी इस लिमिट्स को क्रॉस कर रही है उन पे कोई लिमिट लगा सकते हो। ठीक है, आप सेल के टाइम पर ये मेक श्योर कर सकते हो कि हम अपने टीम को बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, विच इज देयर, दैट इज व्हाई देयर इज अ रिड्यूस इंसेंटिव टू ओवर इंश्योर। You have to make sure that you are regularly reviewing the level of benefits that you have promised, plus the policy conditions must be clearly specified. So या तो आप replacement ratio के terms में लिमिट रखो, या फिर overall benefit लिमिट लगाओ, या फिर आप रेगुलर इंटरवल्स पे रिव्यू करो,
या फिर आप ये मेक श्योर हो कि आप क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हो कि ओवर इंश्योरेंस जो हो रही है वो भी खत्म हो जाए, एंड क्लियर पॉलिसी कंडीशंस. This can also help in reduction of over insurance. So guys, note it down. Guys, noted. Now let's do one question related to this over insurance. SP1 में पता है इशू क्या है? बेसिकली ऑलवेज स्टूडेंट्स फील दैट SP1 एंड SP2 आर इंटर रिलेटेड, एंड SP2 का कंटेंट बेसिकली आई वुड से इज लेस देन SP1 का कंटेंट. रीजन बीइंग SP2 में आप क्या करते थे, मान लो हमें कोई एनिटी चैप्टर पढ़ रहे हो तो हमें एज सच स्पेसिफिक्स ऑफ एनिटी की याद रखने की जरूरत नहीं होती. हमने एनिटी जी के कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद हम लोग बेसिकली बेनिफिट्स कैसे देते हैं, प्रीमियम्स कैसे रिसीव कर रहे हैं, प्राइसिंग कैसे है, डिजाइनिंग कैसे है, रिस्क क्या है, इन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं. ये SP1 में क्या इशू है, आपको हर एक प्रोडक्ट की माइन्यूटेस्ट डिटेल तक पता होने चाहिए. अभी हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग डिटेल्स ही तो डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा आपको लिंक्ड पीरियड भी पता होना चाहिए, आपको वेटिंग पीरियड भी पता होना चाहिए, आपको डेफरल पीरियड भी पता होना चाहिए, आपको रिप्लेसमेंट रेशो, मतलब there are too many definitions that you have to understand that will be used in the contract terms. So this makes SP1 content relatively more compared to SP2 because of the different requirements कि आपको हर एक कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली हर प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अलग तरीके से वर्क करता है, और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है in terms of different situations, in terms of different definitions. तो अभी हमने सिर्फ एक चीज देखी थी, जैसे रिप्लेसमेंट रेशो, जिसको हमने ओवर इंश्योरेंस के साथ लिंक किया. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ओवर इंश्योरेंस इन मोर डिटेल विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन. नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन. Question says a health and care insurance company sells individual long-term income protection policies mainly to
self-employed individuals. So first part of the question, describe over insurance with regard to income protection and give examples of how it can arise. This is for 3 marks. So सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आपको एक्सप्लेन करना है आईपी के कंटेक्स्ट में ओवर इंश्योरेंस है वो कैसे अराइज हो सकता है. सेकेंड इज explain how over insurance can cause problems for insurer, again for 3 marks. Third is describe ways in which these problems might be mitigated for 4 marks. तीनों पार्ट्स में लिस्ट नहीं करना, किसी भी पार्ट में उसने लिस्ट करने के लिए बोला. तीनों पार्ट्स में डिस्क्राइब या एक्सप्लेन. दैट मीन्स योर क्वेश्चन, योर आंसर हैज टू बी डिटेल्ड इनफ. इवन इफ यू गिव मी 3 पॉइंट्स, इट इज कंप्लीटली ओके, बट those 3 points have to be in detail. So it's a 10 marks question, 10 to 12 minutes time. Start attempting.
guys, we are discussing in next 3 to 4 minutes. Do make points when we are discussing. See where you are lagging and how you can improve on that. One to two more minutes. Even if you are not able to make complete points, at least write some keywords कि अच्छा at least ये पता चले कि आपकी direction of thinking is correct or not. So let's discuss now. Question is, a health and care insurance company sells individual long-term income protection policies mainly to self-employed individuals. Describe over-insurance with regard to income protection and give examples of how it can arise. अब भी हमने just discuss किया ये. Over-insurance with respect to income protection policy means income protection मतलब incapacity पे income मिल रही है. So over-insurance with respect to income protection policy means ratio of post-claim income to pre-claim income is very high. So वो रेशियो क्या होती है? रिप्लेसमेंट रेशियो. So can we also say this? Over insurance means appropriately inappropriately high replacement ratio. अब over insurance ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया बेसिकली. सेकेंड पार्ट इज गिव एग्जांपल्स ऑफ हाउ इट कैन अराइज. बेसिकली कब कब ओवर इंश्योरेंस आएगी आपको ये देखना है.
So describe over insurance with respect to LP and give examples of how it can arise. We were discussing this. There was some technical glitch just for a second. Shilpi saying I am not able to paste my answer from Word. Shilpi, what you have to do is basically either you can type your answer directly in the chat section, और अगर आप Word document पे type कर रहे हो basically, तो simply send that file to me on Skype. So Skype ID is academicjunction@gmail.com. So either you can directly type in the chat section, or if you want to paste from the Word, you can simply Skype on this ID. दोनों में से कुछ भी आप करो, answers are coming directly to me and I will read out the answer. So it's up to you how you want to attempt. आपने जो फोटो क्लिक करके भेजने, in case you are appearing from Aya, you can send it on this ID. It will come directly as a 1-to-1 chat only. बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग चैट कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से आप स्काइप कर सकते हो. In case you don't want to type in the chat section and send it individually. So we were discussing over insurance with regard to IP. तो हमने डिस्कस किया when we have higher replacement ratio basically, तो ये over insurance है जब आपकी replacement ratio inappropriately बहुत ज़्यादा high है. अब ये replacement ratio आपको ये बताना है कि high कैसे आएगी. Give examples of how it can arise. तो over insurance कैसे आ सकती है? हमने बोला post claim income divided by pre-claim income ज़्यादा हाई आ रही है. दिस इज अ केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस. अब ये कैसे अराइज हो सकता है? हो सकता है पॉलिसी इस तरीके से सेट है कि जो आपको पोस्ट क्लेम इनकम प्रॉमिस करी हुई है वही ज़्यादा है. सो इट कैन अराइज एट आउटसेट बेसिकली व्हेन द पॉलिसी इज टेकन. एक एग्जाम्पल ये. दूसरा क्या है, आपकी जो प्री क्लेम इनकम है, this is not in line with the benefits that have been promised with respect to insurance company. That is why this pre-claim income is low. So pre-claim income not in line with benefits. It is quite possible that it is high over insurance because of reduction in tax charge. तो अगर टैक्स ही नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये आपकी रेशियो बढ़ जाएगी. सो इफ देयर इज रिडक्शन इन टैक्स चार्ज, दिस कैन गिव राइज टू हायर रिप्लेसमेंट रेशियो. या फिर अब हमने बोला पोस्ट क्लेम इनकम डिवाइडेड बाय प्री क्लेम इनकम. बेसिकली इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दिस पोस्ट क्लेम इनकम इज नॉट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम. इट इज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज व्हेन यू आर सिक एंड इट इज लीडिंग टू इंक्रीज इन द रेशियो. सो multiple sources of income. सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कहते हैं. सेकेंड पार्ट, एक्सप्लेन हाउ ओवर इंश्योरेंस कैन कॉज प्रॉब्लम्स फॉर इंश्योरर. दिस इज नाइस क्वेश्चन कि व्हाई बेसिकली ओवर इंश्योरेंस इज अ प्रॉब्लम फॉर इंश्योरर. अगर मेरी रिप्लेसमेंट रेशियो बहुत हाई है, सिंपल इसे आप सोचो, इमीडिएट इफेक्ट क्या होने वाला है? एंटी सिलेक्शन सबसे बड़ा. बिकॉज जिन इंडिविजुअल्स को पता है कि दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉल सिक, वो डेफिनेटली इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी खरीदेंगे ही खरीदेंगे, बिकॉज दे नो दैट रिप्लेसमेंट रेशियो ऑन दीज पॉलिसीज इज वेरी हाई. सो हाई रिप्लेसमेंट रेशियो बेसिकली कैन लीड टू एंटी सिलेक्शन. व्हाई एंटी सिलेक्शन? Individuals that have a tendency to fall sick will be purchasing the policy to get higher benefits. मतलब जो पॉलिसी खरीदेंगे वो वही लोग खरीदेंगे जिनको पता है कि हाँ हमारी टेंडेंसी है इन कैपेसिटी की, बिकॉज रिप्लेसमेंट रेशियो बहुत हाई चल रही. सिमिलरली अगर मेरे को इन कैपेसिटी के टाइम पर इनकम ऑलमोस्ट इक्वल मिल रही है कंपेयर टू माय करंट इनकम, तो पॉलिसी होल्डर विल स्टार्ट मतलब सिक नहीं भी होंगे ना, दे विल बी टेम्प्टेड टू फेक सिकनेस सो दैट दे कैन बी पेड विदाउट वर्किंग. लोग जान के ये दिखाना स्टार्ट कर देंगे दैट वी आर गेटिंग सिक सो दैट द सेम लेवल ऑफ इनकम कैन बी प्रोवाइडेड. तो
रिप्लेसमेंट रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, इट विल लीड टू फेक सिकनेस टू गेट इनकम ऑफ सेम लेवल। आप सिकनेस कब फेक नहीं करोगे? आपको पता है यार कि अगर मुझे उतना पे नहीं मिल रहा जितना मुझे रेगुलर में पे मिलता है, तो आप सिकनेस क्यों फेक करोगे? अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है बेसिकली कि आपके सिकनेस के टाइम पे इतना बेनिफिट मिलेगा, तो पॉलिसी होल्डर सिकनेस को फेक दिखाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? अब अगर ओवर इंश्योरेंस होती है, जैसे हम लोग नॉर्मल इंश्योरेंस में भी कहते हैं, इससे क्या होता है कि कंपनी को लॉस होगा बिकॉज कंपनी हैज टू पे आउट हाई बेनिफिट्स। अब इफ कंपनी पेज आउट हाई बेनिफिट्स, मे बी इट कैन लीड टू इंश्योरर कटिंग बैक सम अदर बेनिफिट्स। हो सकता है कि बोल दिया ठीक है आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन पेमेंट करने के टाइम पर एक्चुअल में इतना पैसा ही नहीं है, तो इट इज लीडिंग टू कटिंग बैक ऑफ बेनिफिट्स which can result in policy holders being unhappy because their expectations are not being met. So not able to meet expectations of policy holders। और भी इसके अलावा आप लिख सकते हो ओवरऑल क्लेम कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज हायर नंबर ऑफ क्लेम्स विल कम, रिड्यूस इंसेंटिव फॉर पॉलिसी होल्डर टू रिटर्न टू वर्क, एंड इंश्योरेंस कंपनी का बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा क्लेम को इन्वेस्टिगेट करने में। क्यों? क्योंकि अगर रिप्लेसमेंट रेशो बहुत ज़्यादा हाई है तो इंश्योरेंस कंपनी भी 10 बार पहले क्लेम को इंस्पेक्ट करेगी, उसके बाद आपको बेनिफिट्स देगी, तो ऑटोमेटिकली द टाइम स्पेंड ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द क्लेम्स विल इंक्रीज, सो एडमिनिस्ट्रेशन विल increase. So there are lot of repercussions on the part of insurance company. You can mention any 3 to 4. Next is describe the ways in which these problems might be mitigated. अभी हमने डिस्कस किया कि या तो आप बेनिफिट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो, restriction can be in terms of maximum replacement ratio, restriction can be in terms of maximum benefit overall। आप अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दो so that the policy holders are discouraged from taking too high covers, because हो सकता है अगर आप स्टाफ को कमीशन देते हो तो स्टाफ जान के आपको हाई रिप्लेसमेंट रेशियोज वाले प्रोडक्ट्स ऑफर करे, तो स्टाफ की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। रेगुलर रिव्यूज करो थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म्स टू इंश्योर दैट बेनिफिट रिमेन्स एप्रोप्रिएट, अंडरराइटिंग प्रॉपर करो अपनी, एंड आप एक्टिव मेजर्स लेके आओ टू एनकरेज द पॉलिसी होल्डर्स टू रिटर्न टू वर्क। कि आप अगर ये बोलोगे कि वर्क पे रिटर्न करने का कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, यू हैव टू इंक्रीज सम मेजर्स टू एनकरेज क्लेमेंट्स टू रिटर्न टू वर्क। यू हैव टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू रिटर्न टू वर्क, कि अगर आप थोड़े से भी ठीक हो तो भी हम आपको हाफ सैलरी देने के लिए रेडी है। आप ऐसे बोलोगे ना तो ऑटोमेटिकली एक इंसेंटिव मिलेगा दैट यस वी हैव टू रिटर्न टू वर्क। तो हाउ कैन दीज प्रॉब्लम्स बी मिटिगेटेड? एक आप बेनिफिट कैप बोल सकते हो, इधर फिक्स्ड बेनिफिट कर दो या फिर प्रपोर्शन ऑफ रिप्लेसमेंट रेशियो, रेगुलर रिव्यूज, प्रॉपर अंडरराइटिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग टू स्टाफ, ठीक है, प्रॉपर राइटिंग, एक्टिव मेजर्स टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंसेंटिव टू रिटर्न टू वर्क। Maybe we can offer half salary if they return to work in incapacity। कि अगर थोड़ा बहुत भी ठीक हो, मतलब reduced incapacity है, पूरी तरीके से आप ठीक नहीं हो but at least थोड़ा बहुत भी ठीक हो, तो you can come back to work and we can start giving you partial payments। इससे आप प्रमोट कर रहे हो कि आप वापस आओ। Regularly, if you are reviewing the policies, if you are regularly reviewing the benefits, you are making sure that the benefit level remains appropriate। If you are strengthening your underwriting measures, you are putting a curb on anti-selection। अगर आप maximum benefit set कर रहे हो, you are putting a limit on the replacement ratios that can be offered। If you are giving adequate training for sales staff, you are putting a check on the sales process। You are making sure that policy holders are discouraged from taking out high cover policies।
So this is complete discussion of over insurance with respect to income protection policies. I always feel कि if we discuss a particular topic with respect to a question, actually में topic ज़्यादा better समझ में आएगा. अभी हम लोग जब over insurance समझ रहे थे तो boring लगता है कि ठीक है सुन लिया समझ आ गया, but जब तक आप उसको question के form में नहीं देखते ना, वो practicality आपको समझ नहीं आती, वो आपके mind में clear नहीं होता. अब इस question के बाद over insurance at least with respect to income protection is clear in your mind. किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, you are prepared for every type of question on this particular topic. Now let me see what you guys have submitted. Nishi says over insurance refers to higher than replacement ratio, that is benefits from the policy are higher than his income. For example, if policy benefits increase every year, reduction in salary, reduction in taxation of income protection policies. If benefit is higher, then fake insurer may have to pay for higher term. So Nishi, approach towards the answer is correct. No issues in approach. Dheere dheere I think you can reach to the points. Let me see what else I have received. Shilpi says over insurance under income protection policy can arrive a post claim income is relatively higher. This can be due to if policyholders have given false information about his employer, if policyholders have different IP policies because of insurers' weak financial underwriting. Over insurance will cause problem as insurer will be paying more benefits. This will primarily reduce incentive to return to work. They will intimate the insurers about return to work. This will increase morbidity risk. So to a certain extent, Shilpi, definitely correct. You can work more on your second and third part. First part तो ठीक था. और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करो बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर इन रियल टाइम. मतलब मैं जान के आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 10 to 12 मिनट्स दिए बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि अभी इट्स एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स, इट्स डिफिकल्ट टू फ्रेम द एग्जैक्ट की पॉइंट्स, बट इट इज येस इफ यू आर एबल टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स अ गुड इंडिकेशन. Now let's move to next topic. Basically now let's discuss कि हम लोग दिस इनकम प्रोटेक्शन में बेसिकली प्रीमियम्स किस तरीके से पे कर सकते हैं या प्रीमियम्स एज ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी वो प्रीमियम्स कैसे रिसीव करते हैं. सो प्रीमियम्स कैन बी इंक्रीज्ड इन लाइन विद इंक्रीज इन बेनिफिट्स. हो सकता है प्रीमियम्स आपके फिक्स रहे और दे कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग इन लाइन विद एनी इंक्रीज इन बेनिफिट्स. Premiums can be granted, मतलब throughout the term of the policy, premium can remain fixed. Premium can also be subject to no claim discount. कि अगर आप कोई भी claim नहीं लेते income protection में तो there can be some reduction in your premiums as well. Premium हो सकता है fix ना रखकर या फिर increase ना कर we are making it reviewable by the insurance company at regular intervals. So premium can change depending on the experience of portfolio policy. This is different when we are saying premiums are increasing with respect to increase in benefits. जैसा पोर्टफोलियो का एक्सपीरियंस चल रहा है उस हिसाब से हम प्रीमियम्स रिव्यू करेंगे और उस हिसाब से हम प्रीमियम्स इंक्रीज डिक्रीज करेंगे. So you should be aware कि premiums are not always fixed. They can be reviewed, they can be decreased, they can be increased depending on whether we are making any claims, whether there is any increase in benefits or whether there is any change in the experience of the portfolios. अगर हम लोग benefits की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया कि जनरली इनकम प्रोटेक्शन में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपनी रिप्लेसमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई ना कर दें बिकॉज इससे क्या होगा, देयर विल बी रिड्यूस्ड इंसेंटिव टू रिटर्न टू वर्क. सो इट विल बी बेनिफिट्स आर डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड एंड वी कैन यूज सम मैक्सिमम बेनिफिट फॉर्मूला टू प्रिवेंट ओवर इंश्योरेंस. अब बेनिफिट्स कैन ऑल्सो बी इंक्रीज एट अ स्पेसिफाइड रेट. तो एक तो हमने बोला बेनिफिट्स के लिए that you can keep your benefits maximum with respect to a benefit formula and that formula can be linked to your replacement ratio. दूसरा हम क्या कह रहे हैं बेनिफिट्स के लिए, बेसिकली दैट बेनिफिट्स कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड एट अ स्पेसिफाइड रेट. अब ये जो रेट होगा इंक्रीज करने वाला, this can either be fixed percentage that your benefits are increasing either at a fixed percentage,
या फिर योर बेनिफिट्स आर इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशनरी इंडेक्स। तो जरूरी नहीं है कि आप बेनिफिट्स हमेशा इसमें फिक्स दोगे। यू कैन ईदर इंक्रीज द बेनिफिट्स एट अ फिक्स परसेंटेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पॉलिसी और एट अ इन्फ्लेशनरी इंडेक्स। अब ये जो इन्फ्लेशनरी इंडेक्स है ये आपका प्राइस इन्फ्लेशन भी हो सकता है या फिर ये आपका अर्निंग्स इन्फ्लेशन भी हो सकता है। So the point is that if your premium is fixed, the benefits remain fixed. If your premium is increasing, then automatically the benefits can increase. The benefits can be paid at a reduced rate as well if the policyholder returns to work part-time. So जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पॉलिसी होल्डर कहता है कि मैं 9 आवर्स नहीं दे सकता अपने वर्क में, बट मैं अगर 4 आवर्स भी देता हूँ तो आप कहते हो कि ठीक है, आप यू आर रिटर्निंग टू वर्क पार्ट टाइम, सो देन वी हैव टू रिड्यूस द बेनिफिट्स। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पॉलिसी होल्डर कहता है कि आई कैन नॉट वर्क इन पर्टिकुलर जॉब एक्स बिकॉज आई एम नॉट एबल टू वर्क देयर, बट आई एम वर्किंग नाउ इन अ लेस वेल पेड जॉब compared to what I was working before, then also the benefits will be reduced. So either your benefits will increase depending on the percentages, or if the policy holder is getting back to work, तो आपके benefits reduce होंगे because policy holder अब पूरी तरीके से incapacity की position में नहीं है। So आपको ये समझना है कि benefits can increase और benefits can decrease. So if the benefits are decreasing, आप don't understand it from the perspective of employer-employee. बहुत सारे students ना इसमें comparison करते हैं कि employer को कम benefits दे रहे हैं। यहाँ पर employer-employee की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर हम लोग insurance company की बात कर रहे हैं कि अगर policy holder is returning back to work, तो आप जो इनकम प्रोटेक्शन में बेनिफिट्स देते हो वो कम हो जाएंगे आपके। क्लियर? नाउ अभी हमने डिस्कस किया बेसिकली दैट बेनिफिट्स कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। अब हमें ना बेसिकली 3 पीरियड्स रेफर करने हैं विच एक्चुअली आर यूज्ड इन बेनिफिट डेफिनेशंस। एक होता है वेटिंग पीरियड, एक है डेफर्ड पीरियड, एक है लिंक क्लेम पीरियड। तो वेटिंग पीरियड का मतलब क्या है कि पॉलिसी आज स्टार्ट हुई, बट let's say policy holder has to wait for 2 months before the benefits to commence. So waiting period का मतलब क्या है कि although the policy has commenced, but waiting period में आपको कोई भी benefit नहीं मिलेगा। So the point of waiting period is to protect against selection against the insurer. कि जिनको ये लग रहा है कि do think that they have an increased chance of falling sick in the near future, वो लोग तो फिर income protection ले लेंगे। So this is necessary because proposal firm may not pick up that there is an increased risk of sickness. So period में हम मान लो 6 महीने का वेट कराते हैं कि इस 6 महीने के अंदर प्रीमियम्स आप दे रहे होगे बट आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होंगे। So that this may dissuade prospective policy holders who are just taking insurance so that they can expect to make a claim soon. इससे immediate claims on the part of insurance company can be reduced. Because insurance company is receiving the premiums but it does not have any obligation to pay the benefits because benefits अभी waiting period के अंदर। So waiting period मतलब क्लियर हो गया अब आपको कि एक ऐसा पीरियड जिसमें पॉलिसी तो कमेंस हो चुकी है बट बेनिफिट्स एंटाइटलमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट एंटी सिलेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अदरवाइज जिसको लगेगा यार कि मैं बीमार होने वाला वो क्या करेगा, तो पॉलिसी खरीद लेगा और इमीडिएटली नेक्स्ट महीने से उसको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमें यही तो मेक श्योर करना है कि ऐसे लोग आर डिसवेडेड फ्रॉम सीकिंग इंश्योरेंस। दूसरा हमारा होता है डेफर्ड पीरियड। अब डेफर्ड पीरियड का मतलब क्या है कि बेसिकली इंश्योरर विल नॉट पे बेनिफिट्स ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ सिकनेस। ये आपका नॉर्मल डेफर्ड पीरियड। अब व्हाई वी इंक्लूड दिस डेफर्ड पीरियड सो दैट द पॉलिसी कैन इंटीग्रेट विद एम्प्लॉयर बेनिफिट्स, इट कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्लेम्स ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योरर, इट कैन रिड्यूस इंश्योरर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कि पहले के मतलब इमीडिएटली आज से बेनिफिट स्टार्ट नहीं हो रहे, बेनिफिट 7 महीने से स्टार्ट होंगे कि तब तक एटलीस्ट वो अपनी कॉस्ट तो मीट करे। अगर आज ही बेनिफिट दे देंगे तो अभी तो कॉस्ट भी नहीं कवर हुई है। सो दिस इज जस्ट इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्लेम्स, टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड टू मीट द कस्टमर ट्रू नीड्स। जनरली जो डेफर्डमेंट
फिक्स्ड होती है, वो कैसे होती है, 4 वीक्स की डेफरमेंट हो गई, 1 वीक की डेफरमेंट हो गई, 28 वीक्स की डेफरमेंट हो गई, एंड कभी कभी वी हैव एन ऑप्शन ऑफ स्प्लिट डेफरमेंट एज वेल। स्प्लिट डेफरमेंट क्या होता है कि मतलब आफ्टर 13 वीक्स आपको इतना पैसा मिलेगा, अच्छा आफ्टर 26 वीक्स आपको इतना पैसा मिलेगा। सो द पॉइंट इज अगेन जस्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंटी सिलेक्शन, कि अगर हम लोग अभी 0 पे आपने पॉलिसी ली, पहली बात तो पॉलिसी स्टार्ट ही 2 महीने बाद होगी, और अगर आप इस 2 महीने से 3 महीने में लेट्स सपोज आपको 500 पर डे के हिसाब से मिलेगा, और 3 महीने से 6 महीने में आपको 700 पर डे के हिसाब से मिलेगा, और 6 से 9 महीने में आपको 900 पर डे के हिसाब से मिलेगा। तो दिस इज स्प्लिट डेफर्ड पॉलिसी। एंड थर्ड वन इज योर linked claims period. Now, one way in which basically many insurers seek to encourage a return to work is to waive the deferred period if sickness recurs within say 26 or 52 weeks. इसको कहते हैं linked claim condition, कि मान लो यू आर रिटर्निंग टू वर्क एंड यू रिलैप्स इनटू सिकनेस, बहुत मतलब आप 2 महीने में रिटर्न करें और फिर से आप बीमार हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से डेफर पीरियड सर्व करना पड़ेगा। सो यही लिंक क्लेम पीरियड का मतलब यही है कि वी आर जस्ट प्रमोटिंग टू रिटर्न टू वर्क, कि हम कह रहे हैं हम डेफरमेंट हटा देंगे अगर आपकी सिकनेस दोबारा से 26 या 52 वीक्स में आ जाती है। सो विद अ लिंक्ड क्लेम पीरियड यू कैन ट्राई रिटर्निंग टू वर्क without the fear of completing another deferred period if you fall sick shortly after returning to work. तो लिंक क्लेम पीरियड लाए इसलिए है कि आपको दोबारा से बेसिकली डेफर पीरियड सब जैसे अभी हमने पहले भी बोला था, लिंक क्लेम पीरियड में हम लोग क्या कर रहे थे कि दैट कंडीशन दैट अलाउज अ रिटर्न टू पार्ट टाइम वर्क विद रिड्यूस पॉलिसी बेनिफिट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द पॉलिसी। सो इसमें क्या है कि हमने इसको इसीलिए प्रमोट किया है कि आपको दोबारा से डेफरमेंट को नहीं फॉलो करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इंसेंटिव होगा, वापस काम करने का इंसेंटिव जनरेट होगा, अदरवाइज कोई इंसेंटिव नहीं होता। सो लिंक क्लेम पीरियड है इसके, अच्छा ठीक है हमने बोल दिया कि अगर 26 या 52 वीक्स में आपकी सिकनेस दोबारा से आती है तो आपको डेफरमेंट दोबारा से सर्व करने की नीड नहीं। ऐसा नहीं आपने 2 महीने ज्वाइन किया उसके बाद हम कह रहे हैं कि आप दोबारा से बीमार हो गए तो फिर से डेफरमेंट पीरियड आपको फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं। आपने एक बार दोबारा से अगर स्टार्ट कर लिया तो वी कैन स्टार्ट गिविंग यू बेनिफिट्स। So these are different definitions or different periods which are important for benefits understanding. So this is just the start of your income protection. अभी बहुत सारा डिटेल में हमारा income protection insurance पढ़ा है, तो we will be continuing with this income protection insurance only in next class. So guys, if you want to revise before the next class, just make sure that you have got your orientation lecture plus this lecture in case you have missed it live. अगर आपने दोनों ही लाइव लेक्चर अटेंड करे हैं तो one extra thing that you can do is just watch or just read your chapter 1 before attending the class. So that's it for the day from my side. Thank you.